Hello guys, क्या हाल है? Today topic we are going to discuss about even and odd program in Python. The question is, write a program to find out whether a number is even or odd. So what is the concept behind this program? What is the concept behind the logic of the program even and odd? Finding out the number which is even or odd. बार बार मिस्टेक हो रहा है. Okay, so here we are going to discuss about the concept. Simply we are going to discuss about the concept. What is the logic? What is the main thing that will be help us to find out the number is even or odd. Okay, first of all, what is the statement? First of all, a, we are taking a variable which is known as a is a variable which can store a value which is entered by the user. Here what is the output? Input. What is the concept of input? Input is responsible for entering any types of value which was entered by the user. Input is a method which is used to entering a value or accepting a value from the end user. So whatever a user want to enter here, whatever a user press any types of value, that can be simply accept by the input statement and then store in the a variable. And what is the function of int? ये तो आपने पूछा नहीं. What is the function of print? What is the function of int? Int can be responsible for accepting only integer value, not floating value, not string value, not character value. It can be responsible for only accepting the integer value. So whatever a user going to entering here, that will be stored where? A variable. Okay. Then after, if this line, understand this line, this is the main line which is responsible for total program. This line will be responsible for find out whether a number is even or odd. Let understand. If a percentile 2, सभी लोगों को पता होगा कि परसेंटाइल के बारे में क्या है. परसेंटाइल का मतलब क्या होगा सभी लोगों को पता ही होगा. प्रोग्रामिंग, इफ यू आर acquainted with programming, then you all are aware of the logic behind percentile. What is the percentile operator? This is operator, yes or no? Operator है कि नहीं? Operator है. तो if a percentile 2, what is the result? First हम समझ लेते हैं कि a percentile 2 means 5 percentile 2. अब बताओ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा. What will be the result here? 5 percentile 2 क्या होगा? 5 percentile 2 मतलब percentile का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि 5 divisible by 2. If 5 is divisible by 2, then here ऐसा लिखा है if a divisible by 2. yes or no? So यहाँ पर 5 percentile 2 का मतलब यह होता है कि 5 पूरा का पूरा 2 के साथ अगर डिवाइड हो गया तो इसका आउटपुट में 0 आएगा. अगर ये 2 के साथ डिवाइड नहीं हुआ, सिंपली यू कैन से दैट कि 5 percentile 2 द रिजल्ट विल बी द रिमाइंडर पार्ट. मीन्स 5 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पर आउटपुट में वो लिखा होगा. तो 5 percentile 2 1. ऐसा ना, अगर 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर पार्ट क्या आएगा, एक ही आएगा ना. ऐसा ना. बट व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट, व्हाट विल बी द क्वेश्चन पार्ट? क्वेश्चन पार्ट इज 4. मीन्स क्वेश्चन मतलब देखिए, आप पता नहीं क्या, देखिए क्वेश्चन मतलब देखिए 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा. तो हियर क्वेश्चन, इसका मतलब ये होता है कि 5 डिवाइडेड बाई 2 का मीनिंग इज द कंसेप्ट, द क्वेश्चन पार्ट हियर विल बी डिस्प्ले द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पार्ट एंड हियर वी कैन सिंपली गेटिंग द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर पार्ट. So whatever the answer will be going to display here, that will be equals to and next coming to the concept, what is the meaning of double equal to? What is the meaning of double equal to? Double equal to का मतलब यह होता है कि 5 equal to 2 is the condition is true or false? फॉल्स. डबल इक्वल का मतलब ये होता है कि 5 का वैल्यू 2 के साथ मैच हो रहा है कि नहीं. दिस इज नोन एज कंपैरिजन ऑपरेटर. व्हाट इज द ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर. दिस इज नोन एज कंपैरिजन ऑपरेटर. ओके, तो 5 का वैल्यू 2 के साथ बराबर हो रहा है कि नहीं. मतलब जैसे कि यहाँ पर a percentile 2 इक्वल टू 0, वी कैन से दैट a इक्वल टू 0. मतलब इसका मतलब ये होता है कि a का वैल्यू 0 के साथ इक्वल है कि नहीं है. अब आप पूछेंगे कि भाई ये अगर इक्वल हुआ है, मतलब इसको कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है. देखिए बेसिक डिफरेंस, द बेसिक डिफरेंस बिहाइंड दिस एंड दिस,
व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, मतलब डबल इक्वल टू का मतलब ये होता है कि डबल इक्वल टू में हम क्या करते हैं कि ए का वैल्यू चेक करते हैं जीरो के साथ, बट इन द केस ऑफ ए equals to 0, mean in the case of single equals to, we are simply assigning the value of a. Okay, here we are assigning the value of a is 0, and we can also assigning any types of value here, like 5. We are assigning a value of a is 5. Clear? Okay, so if a percentile 2 equal to 0, मतलब इसका रिमाइंडर पार्ट अगर 0 हुआ, simply if the remainder part of this condition will be 0, then the following statement will be displayed. अगर ये वाला कंडीशन satisfy हुआ, if the condition is true, then the following statement will be printed. Otherwise, if the condition is false, अगर ये कंडीशन गलत हो गया, then comes to else part, compiler or interpreter or control. What will be the program? What is the concept behind the compiler, interpreter, assembler? Are you clear or not? If you have any doubt in any concept, in any topic, then you can simply comment me. I will be definitely cleared you. Okay, so comes to here कंट्रोल क्या करता है यहाँ पर, कंट्रोल मतलब जो लाइन बाय लाइन इसको रीड करता है, इन केस ऑफ पाइथन यहाँ पर इंटरप्रीटर काम करता है, ठीक है, इंटरप्रीटर। पाइथन के केस में इंटरप्रीटर होता है जो काम करता है डायरेक्टली कोड को रीड करने में, और इसको एक बैकएंड में मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रीटर रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये तो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, इसको मशीन कैसे अंडरस्टैंड करेगा, मशीन को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नहीं होगा, तो वो सब का काम इंटरप्रीटर का होता है। इंटरप्रीटर के बारे में, कंपाइलर के बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी सिंपली कम्स टू हियर, so compiler or interpreter comes to else block. If the condition is false, then the compiler control comes to else block, and then the following condition, the following statement will be printed here. Clear? Yes or no? अगर हम ये कंडीशन का अगर ये कंडीशन गलत हो गया तो हमें ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, हमें ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखाएगा ये। क्लियर? यस और नो? तो अब बताओ, अगर यूजर कोई वैल्यू इनपुट करेगा, a इक्वल टू any value user can input here, like 12, यूजर आया, प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम जब रन होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए सिंपली स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि आउटपुट क्या आएगा। देखिए जब भी कोई प्रोग्रामर आएगा, जब भी कोई यूजर आएगा, व्हेनेवर यूजर कम्स टू एंटरिंग एनी टाइप्स ऑफ वैल्यू, वेदर यूजर कम्स टू चेकिंग वेदर नंबर इज 0 और वेदर नंबर इज इवन और इवन, तो उसको क्या आएगा डायरेक्टली आउटपुट में क्या आएगा, जब वो प्रोग्राम रन करेगा आउटपुट। ओके, आउटपुट में क्या आएगा, सिंपली वो आएगा, इस प्रोग्राम को ऐसे, यहाँ पर एक रन बटन होता है, अगर आपको पता होगा तो पाइथन में ऐसे रन बटन होता है, या फिर आप कुछ भी ऐसे शॉर्टकट है रन कर सकते हैं। अगर एक यूजर आया, कोड लिखा हुआ है पूरा का पूरा, एंड यूजर कम्स टू हियर एंड डायरेक्टली प्रेस द बटन, इफ द यूजर प्रेस द बटन देन आउटपुट विल बी हियर शोइंग हियर लाइक एंटर ए नंबर, मतलब ये वाला लाइन डायरेक्टली यहाँ पर शो करेगा। देन आफ्टर शोइंग द लाइन, यूजर क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ पर कोई एंटरिंग वैल्यू एंटर करेगा, जैसे हम बताएंगे 12 एंटर करेगा। अब यूजर 12 एंटर किया, यहाँ पर यूजर जब 12 एंटर किएगा तब इंटरप्रीटर का काम चालू हो गया, मतलब ऐसे भी चालू हो गया है। इंटरप्रीटर का काम यहाँ पर क्या करेगा, 12 का वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगा, 12 का वैल्यू ए में स्टोर होगा, तो अब ए का वैल्यू असाइन होकर हो गया 12। ओके, 12 ए का वैल्यू डायरेक्टली कहाँ पर असाइन हो गया, 12 को हम ए में असाइन कर दिए, मतलब यहाँ पर पूछे और ये वाला वैल्यू इनपुट होकर डायरेक्टली यहाँ पर ए में आ गया। अब चेक करेगा ए परसेंटाइल 2, मतलब 12 परसेंटाइल 2, जैसे कि हो गया 12 परसेंटाइल 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिमाइंडर पार्ट, परसेंटाइल मतलब 12 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे देन इसका रिमाइंडर पार्ट क्या आएगा, 0 आ गया, तो इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, इसका रिजल्ट 0 आया और इक्वल्स टू 0। दिस इज ट्रू और नॉट, दिस कंडीशन इज ट्रू और नॉट, yes true, the condition is true, means the condition is satisfied. If the condition is satisfied then the following statement will be displayed here। तो क्या आएगा यहाँ पर, आउटपुट क्या आएगा, द नंबर ए लिखा है, ए का मतलब है ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 12 लिखेगा, द नंबर ए मीन्स 12 इज इवन। ओके, क्लियर, मतलब जो भी हम यहाँ पर इनपुट देंगे वो सीरियली ऐसे करके यहाँ पर हमें आउटपुट में दिखाएगा। अगर हम इसको मान लीजिए आप हम यहाँ पर 12 के बदले हम देंगे यहाँ पर 11, तो क्या आएगा,
this condition will not satisfied here, means 11 percentile 2, what will be the remainder here? 11 percentile 2 means remainder आएगा क्या यहाँ पर 1. So 1 equals to 0. Is the condition is satisfied? Yes or no? No, the condition will not satisfied. If the condition is not satisfied, then skip the statement, means ये statement skip होके कंट्रोल क्या करेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, डायरेक्टली एल्स ब्लॉक में आएगा. और एल्स ब्लॉक में कोई भी कंडीशन है क्या? कोई भी कंडीशन है ही नहीं. इफ देयर इज नो कंडीशन, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, देन द कंपाइलर्स कम्स टू एल्स ब्लॉक एंड देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड हियर. तो यहाँ पर क्या आएगा, द नंबर 11 इज ओड, यहाँ पर लिखा है ओड. तो अगर हम इवन नंबर कुछ एंटर करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा. अगर हम कोई भी ओड नंबर एंटर करेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट सिंपली प्रिंट होगा. ओके, क्लियर. पूरा का पूरा कोड के अंदर ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है. दिस लाइन गोइंग टू डिसाइड अबाउट द नंबर वेदर इट इज इवन और ओड. ओके, क्लियर. If you have any doubt, then you can directly comments me. I will be clear about it. Okay. So this is all about today. This is all about this video. कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक दे दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.